Yeah, good morning everyone. Today we are discussing mole concept again. This is lecture number 2 of mole concept. It is on we are discussing some solved sample problems from page number 161 Lakmeer Singh. Sample problem 7 says which has more number of atoms 100 grams of sodium or 100 grams of iron. Atomic mass of sodium is 23U whereas atomic mass of iron is 56U. I have already told you the formula for number of atoms. This is given mass upon atomic mass into Avogadro number of atoms. So what I'll do in place of Avogadro number, I'm not going to write 6.022 into 10 to the power 23. I'll just write down Na. I have to find out, suppose, number of atoms in 100 gram of sodium. This is the first part. Number of atoms in 100 gram of sodium is equal to given mass of sodium, which is 100 gram, upon atomic mass of sodium, which is 23 gram, that is also given. And in place of Na, don't write 6.022 into 10 to the power 23. Let it be Na only. If you divide 100 by 23, you will get 4.34. So this would be 4.3 times Avogadro number of atoms. So the number of atoms in 100 gram of sodium is 4.34 times Avogadro number of atoms. Now we have to find out the number of atoms in 100 gram of iron. Right? So given mass is 100 gram, the atomic mass of iron is given to us 56 gram, and in place of Na you write down Na. 100 by 56, if you will do, you will get less than 2, you will get 1.78 Na. So clearly you are looking that by 1 and 2, you are clearly looking that number of atoms in 100 gram of sodium is more than that of number of atoms in 100 gram of iron. So class, this is about question sample problem number 7. Now we will discuss sample problem number 8. I would like you to zoom in here a little bit. Sample problem number 8 says, if 1 gram of carbon contains X atoms, what will be the number of atoms in 1 gram of magnesium? And the atomic mass of carbon is 12 and atomic mass of magnesium is given. Please see, 1 gram of carbon contains X atom. You know what is the atomic mass of carbon? This is 12 gram. So we can write 12 gram of carbon. 12 gram of carbon में कितने atoms हैं? कभी भी मैंने बताया था एटमिक मास हो या मॉलिक्यूलर मास हो, एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होता है. तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन में है एवोगाड्रो नंबर एटम्स, यानी कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स. तो 1 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने हो जाएंगे? एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय 12 एटम्स. पर यहाँ पर ये कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर ये कह रहा है कि एवोगाड्रो नंबर 1 ग्राम ऑफ कार्बन में एक्स एटम्स है. तो ये जो भी आया है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बाय 12, इसे आपको एक्स से कंपेयर करना पड़ेगा. और आप कह सकते हैं कि जो एवोगाड्रो नंबर आया है वो 12x हो जाएगा, यानी कि एवोगाड्रो नंबर के प्लेस पे हम 12x लिख सकते हैं. ये इसे इक्वेशन नंबर 1 दीजिए. ये पेज नंबर 162 सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 8 लखमीर सिंह में दे रखी है. What will be the number of atoms in 1 gram of magnesium? Magnesium का एटमिक मास है 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम. 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में कितने एटम्स हैं? एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स है, राइट. तो 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में कितने होंगे? इसने यही पूछा, 1 ग्राम में कितने होंगे? Na/24 होंगे. इसे नंबर 2 दे दीजिए. अब आप 1 और 2 को कंपेयर कीजिए. आपको पता है आप Na
मतलब यहाँ पर लिखना है 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कंटेन्स, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में आपको बताने हैं, और Na के प्लेस पे आप लिख सकते हैं 12x, तो ये हो जाएगा 12x/24, यानी कि आ जाएगा x/2। तो आपसे कोई पूछे मैग्नीशियम में कितने एटम होंगे मैग्नीशियम के 1 ग्राम में, तो आप कह सकते हैं x/2 एटम्स होंगे, राइट। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो सॉल्व पर थोड़े से टिपिकल हैं, इसलिए मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ। सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 9 says how many grams of neon will have the same number of atoms as 4 gram of calcium? Atomic mass of neon is 20U and atomic mass of calcium is given to you 40U. इसने बोला है कितने ग्राम ऑफ नियॉन, तो लेट कर लीजिए x ग्राम ऑफ नियॉन will have the same number of atoms as 4 grams of calcium, right? ये हमने मान लिया। अब आप ये बताइए नियॉन का है कितना, 20 ग्राम है। 20 ग्राम ऑफ नियॉन में कितने एटम्स हैं, एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो 1 ग्राम नियॉन में कितने एटम्स हो जाएंगे, यूनिटरी मेथड से एवोगाड्रो नंबर अपॉन 20 एटम्स हो जाएंगे, राइट। और इसने बोला x ग्राम में कितने होंगे, तो x ग्राम में हो जाएंगे Na/20 मल्टीप्लाई में x। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब आगे देखिए कैल्शियम की बात हो रही है, कैल्शियम का एटमिक मास है 40 ग्राम, तो 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम में कितने एटम्स हो जाएंगे, कितने होते हैं आपको पता है, एटमिक मास हमेशा एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स कंटेन करता है। कैल्शियम का एटमिक मास है 40 ग्राम, तो 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम में एवोगाड्रो नंबर हो जाएंगे, तो 1 ग्राम में हो जाएंगे Na/40 एटम्स। और इसने बोला था 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम के बराबर हो, तो 4 ग्राम कैल्शियम में हो जाएंगे Na/40 × 4। सॉल्व कीजिए, कैपिटल Na/10 आ जाएगा, इसे इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। अब क्लास आपने करना क्या है, आपको पता था कि x ग्राम ऑफ नियॉन में जितने एटम्स हैं वो 4 ग्राम कैल्शियम के एटम्स के बराबर हैं, तो यानी कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपने कंपेयर करना है। इक्वेशन नंबर 1 से रिजल्ट आ रहा था Na/20 × x इक्वल टू हो जाएगा Na/10। ध्यान दीजिए Na से Na कैंसिल कीजिए, x/20 इक्वल टू आ जाएगा 1/10, x आ जाएगा 20/10, यानी कि 2 आ जाएगा क्लास, राइट। 2 ग्राम आ जाएगा x की वैल्यू। और इसी का सैम्पल प्रॉब्लम 10 में बताता हूँ। अभी हम जैसे ये कर रहे हैं ना एटमिक एटम्स वाले कर रहे हैं, अभी ऐसे मॉलिक्यूल्स वाले भी करेंगे। पहले आप ये अच्छे से करिए, फिर मॉलिक्यूल वाले भी करेंगे। लास्ट सैम्पल प्रॉब्लम 10 says the mass of one single atom of an element X is 2.65 × 10⁻³ 23 grams. What is the atomic mass? What could this element be? बहुत आसान है, यूनिटरी मेथड से हो जाएगा बेटा कि मास ऑफ वन एटम, कोई भी एलिमेंट है, मुझे एलिमेंट भी गेस करना है, यहाँ पर पता नहीं है, किसी भी एक एटम के, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का जो मास है वो दे रखा है 2.65 × 10⁻³ ग्राम्स। तो आपको पता है किसी भी एलिमेंट में कितने एटम्स होते हैं, एवोगाड्रो नंबर एटम्स होते हैं, राइट। तो एवोगाड्रो नंबर एटम्स का जो मास होगा वो हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई में 2.65 × 10⁻23। ये 10⁻23 और 10⁻23 कैंसिल हो जाएंगे, यू विल बी लेफ्ट विद 6.022 × 2.65। एटम की बात हो रही है, आई रिपीट, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15.96 ग्राम, जो 16 ग्राम। तो 16 ग्राम किसका एटमिक मास होता है, ऑक्सीजन का, ठीक है, यानी कि ये जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है। थैंक यू।